Praise the name of the Lord. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Bless your name. Bless your name. Bless your name. Hallelujah. Thank you, Jesus. Bless you, Lord. Praise your holy name. Glorify you. Hallelujah. Thank you, Jesus. Bless your name, Lord Jesus. King, glorify you. Blessed King. Blessed Lord, we glorify your name. Glorify your name. We glorify your name. Glorify your name. Glorify your name. We glorify your name, King of glory. We exalt you, exalt you, exalt you. Hallelujah. 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 Lord, we bless you. Lord, we praise your name. Excuse me. Lord Jesus, we praise your name. Hallelujah. Hallelujah. Lord Jesus, we glorify you this morning. We exalt you, exalt you, exalt you. Hallelujah. Lord, we come in your presence through the blood on the cross. Lord, through the blood on the cross. Lord, through the blood on the cross. Lord, we come through the blood on the cross, through the blood on the cross. Lord, we come before you through the blood on the cross, through the blood on the cross, through the blood on the cross. We come into your presence, Lord. We come into your presence. 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 Lord, we pray for your presence, for your presence. Lord, for your presence, your cleansing presence, Lord, your healing presence, your liberating presence, Lord, your energizing presence, Lord. Hallelujah. तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो. तेरे लहू की जय हो, तेरे लहू की जय हो, तेरा धन्यवाद हो, तेरे लहू की जय हो. खुदावन जी, तेरे लहू की जय हो, तेरा धन्यवाद हो. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. तेरा धन्यवाद, 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 धन्यवाद. तेरा धन्यवाद, 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 धन्यवाद. धन्यवाद, 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 धन्यवाद. धन्यवाद हो खुदावन, तेरे लहू की जय हो, 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 तेरे लहू की जय हो. Hallelujah. 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 धन्यवाद, 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 धन्यवाद.
धन्यवाद, 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 धन्यवाद। धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। Hallelujah. Jesus of Nazareth. तेरे लहू की जय खुदावन। हालेलुया। खुदावन जी, आज की सुबह आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। हम आपके हजूर में आते हैं यीशु मसीह आपके लहू के द्वारा। आपके जलाली लहू को हम पुकारते हैं। खुदावन जी, आपका खून काम करे हमारे बीच में। Lord Jesus of Nazareth, we come before the stream, never ceasing, endless, flowing stream of the precious blood of the Lamb. Lord, the glorious blood of our redemption. We draw nigh for mikvah, for tavila, for fresh cleansing. Thank you that blood of the Lamb shall never lose the power. Blood of the Lamb is loaded with heavenly glory, splendor and majesty. Thank you that the blood liberates. Thank you that the blood cleanses. Thank you that the blood breaks the yoke of bondage. The blood destroys every chain. There is true liberty in the blood. There is true freedom walking right under the blood of the Lamb. I plead your blood over everyone. I plead your blood over each and every one. Lord, over each and every one. Hallelujah, 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 hallelujah. Plead your blood. I 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 plead your blood. Thank you, Jesus. In Jesus' name, Lord, we pray. जय मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। आप सबको जय यीशु मसीह की। हालेलुया। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं मिस्ट्री बेबीलोन, और ये आई थिंक दिस इज द 6th सेशन फॉर मिस्ट्री बेबीलोन। और मैं कल रात आपको बता रहा था हम अध्ययन कर रहे थे जरमाया की प्रोफेसी। प्रॉफिट जरमाया, one of the most outstanding prophet in the Old Testament, whose prophetic spectrum is so huge. The Lord God revealed unto him a lot about the future of the nation of Israel, about the impending doom, the judgment, and all that would entail the restoration, the glorious promise of a great future of the people of Israel, and God's subsequent judgments that will fall upon the nations of the earth, and how everything will transpire and the end of the ages, and how everything will come to a glorious climax. Jeremiah saw it all, and Jeremiah wrote it down. Hallelujah. We will be deciphering through the help of the Holy Spirit
by the illumination of the Holy Spirit, all the deep, profound things that are hidden here. तो कल मैं आपको बता रहा था, अगर आपको याद हो, कल रात मैंने आपको बहुत पावरफुल स्क्रिप्चर दिए खुदावंद के कलाम में से। हालेलुया। जर्मिया प्रॉफिट ने, जरमाया नबी की पुस्तक 29 अध्याय के 10 वचन में भविष्यवाणी की कि वो 70 साल के लिए इजरायली कौम 70 साल के लिए गुलामी में जाएगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने 70 सबैटिकल दैट द अर्थ शुड हैव टेकन रेस्ट। जमीन को 7वें साल प्रभु यहोवा ने कहा विश्राम देना। जमीन की सबत, हल मत जोतना, बीज मत बोना, फसल मत काटना। लेकिन इस्राएलियों ने परमेश्वर की इस आज्ञा को नहीं माना। ग्रीड, कावचसनेस, कुलिसियों 3:5 बताता है कावचसनेस, ग्रीड, मूर्ति पूजा है। बहुत से मसीह लोग करते हैं, अन्य जातियों को मूर्ति पूजा के लिए दोषी ठहराते हैं, लेकिन खुद धन के लोभी हैं, संसारिक चीजों की लोलुपता से भरे हैं। प्रभु का वचन बताता है कावचसनेस क्या है? ग्रीड है। कावचसनेस, ग्रीड जो है, ये मूर्ति पूजा है। इसलिए यूहन्ना अपनी पत्री में लिखता है, हे मेरे प्यारे बच्चों, अपने आप को मूर्तियों से बचाओ। तो भाई और बहनों, वो 7वें साल की सबत को नहीं मानते थे। 490 साल जब राजा लोग उनके ऊपर राज्य कर रहे थे, इस्राएलियों ने परमेश्वर की इस आज्ञा को तोड़ा। तो जब उनके पाप का घड़ा भरा, जब उनका अधर्म अपनी चरम सीमा पे पहुंचा, तो मैंने आपको कल बताया, प्रभु कहता है मैं तुम्हें तुम्हारे दुश्मनों के हाथ में कर दूंगा। मैंने कल आपको वचन दिए कि प्रभु यहोवा कहता है नबूकदनेस्सर मेरा नौकर है, मैं तुम्हें नबूकदनेस्सर के हाथ में देता हूं। जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानोगे, परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपना जीवन नहीं ढालोगे, परमेश्वर के विधियां, न्याय, परमेश्वर के स्टैच्यू, डिक्रीज, आपका जीवन उनकी फाउंडेशन पे नहीं बना होगा और आप प्रभु के विरुद्ध में बलवा करेंगे, अन्य जाति जैसे गंदे घिनौने काम करोगे पाप के, तो प्रभु यहोवा कहता है मैं तुम्हारे ऊपर तलवार भेजूंगा। प्रभु यहोवा कहता है मैं अकाल भेजूंगा। प्रभु यहोवा कहता है मैं मरी भेजूंगा। और फिर प्रभु यहोवा कहता है यदि तुम फिर भी नहीं सुधरे मेरी और मुड़े, तो मैं बीस्ट भेजूंगा। The Lord says repeatedly in the entire Old Testament, He says, if you will not keep my commandments, if you will crush my covenant under your foot, if you will not walk in holiness, purity and righteousness, if you will not observe my statutes and decrees and my commandment, and if you will go whoring about the pagans, the nations, and worship and bow down to their images and idols and do all kind of licentious deeds, and you will plunge into perversion and debauchery, the Lord says, I will send the sword, I will send the famine, I will send the pestilence. There is one that is wreaking havoc on the earth right now. And then the Lord says, if you will still not hearken unto my voice, I will send the beast. The beast is a demonic, religious, political, social and economic system that would come and suppress you and also would take you in exile. This is what happened repeatedly with the children of Israel. That's God's pattern of judgment. God will empower your enemies and they will discipline you. Peradventure, you repent and turn to the Lord. तो प्रभु यहोवा ने यही काम किया। हालेलुया। आप वचन को ध्यान से पढ़िएगा। यहां पे 2 टर्म्स हैं। एक है, मैंने आपको बताया 3 कैप्टिविटी हैं सदर्न किंगडम की। 3 बार नबूकदनेस्सर ने 3 बार यरूशलेम को घेरा डाला। There are 3 different seizes of Jerusalem by the king Nebuchadnezzar.
3 times he took the people of Israel in captivity. 3 times. The first 70 years, 70 साल की जो जजमेंट है वो फर्स्ट सीज से शुरू हुई. Second siege आई at when the desolation of Jerusalem happened. And then the third siege when finally everybody was taken into captivity. सब कैप्टिविटी में चले गए. फर्स्ट टाइम कैप्टिविटी में केवल रॉयल लाइन गई. परमेश्वर ने जब नबूकदनेस्सर को भेजा, उसने यहोयाकीम का बेटा जो है, यहोयाकीम के साथ ही ordained him as vassal king, suzerain vassal king. But he would listen to the false prophets. Then he came second time, which is called the desolation of Jerusalem. And then ultimately the third siege, and he took everybody away with him. इज़िकियल नबी की किताब 4 अध्याय उसका 1 से 8 वचन सुने. इज़िकियल 4 verses 1 to 8. And you, son of man, take a brick and lay it before you and engrave it a city, even Jerusalem. Put siege works against it and build a siege wall against it and cast up mound against it and set camps also against it and plant battering rams against it all around. And you take an iron girdle and place it as an iron wall between you and the city, and set your face towards this, and let it be in a state of siege, and press the siege against it. This is the sign of the house of Israel. Then lie on your left side, and the place of punishment for the house of Israel upon it, and number of the day that thou lie thereon, you shall bear the iniquity. For I assign to you a number of days, 390 days, equal to the number of the years of their punishment. कितने? 390 दिन. प्रभु कहता है तू एक तरफ लेटेगा, जो उनके ईयर है, पनिशमेंट के ईयर 390. So long shall he bear the iniquity of the house of Israel, and when you have completed these, thou shalt lie the second time, but on the right side, and bear the punishment of the house of Judah. For 40 days I assign you a day for each year, and you shall set your face towards the seas of Jerusalem, and with the arm bared, and you shall prophesy against the city. And behold, I will place cords upon you, and so that you cannot turn from one side to the other till you have completed the days of your siege. And you take wheat, barley, beans, and lentil, millet, emmer, and put them in a single vessel, and make your bread upon them during the number of the days that you lie on your side. 390 days thou shalt eat it, and your food that you eat shall be by weight, 20 shekel a day, from day to day, and you shall eat it. And the water you drink by measure, the 6th part of a hin, from the day that you shall drink, from the day to day you shall drink, and you shall eat it as barley cake, baking in the sight of human dung. देखिए प्रभु क्या कह रहा है, सुने ध्यान से. प्रभु यहोवा अपने सच्चे नबी को अपनी प्रजा के पाप को भोगने के लिए कह रहा है. एक तो प्रभु कह रहा है कि तू इसे एनेक्टमेंट करना है, इसका ईंटें रख के, पहाड़ माउंड बना के और लोहे से अपने आप को सेपरेट करके, मतलब तूने ये दिखाना है कि कैसे नबूकदनेस्सर राजा आ रहा है, कैसे वो यरूशलेम की घेराबंदी कर रहा है, और कैसे मैं तुझे बचाऊंगा, अलग करूंगा. और प्रभु यहोवा कहता है कि 390 दिन का पाप नॉर्दर्न किंगडम का, 390 साल नॉर्दर्न किंगडम के राजाओं ने पाप कमाया है. इसका मतलब नॉर्दर्न किंगडम में केवल 1 या 2 राजा ही ऐसे हुए जो प्रभु के संग चले हैं,
बाकी सब राजाओं ने इजरायली प्रजा को दुष्ट काम करने के लिए प्रेरा। उनके लेवियों ने, याजकों ने इजरायलियों के अंदर कोई आत्मिक जागरण की बात नहीं की। वो भी भ्रष्ट थे और दुष्ट थे और नबी झूठे थे, झूठी भविष्यवाणियां करते थे। और यहूदा की किंगडम ने 40 साल अधर्म कमाया। तो दोनों को कंबाइन किया, ये बन गया 430, 390 प्लस 40, 430 डेज। और एक दिन को प्रभु यहोवा ने साल में बदल दिया, 430 साल। अब प्रभु यहोवा अपने दास से कहता है, देखिए नबी कौन होते हैं। प्रभु यहोवा नबी से कहता है कि तू अपने लिए इतना लिमिटेड खाना लेना, बिल्कुल इतना लिमिटेड, और एक जगह इकट्ठा करके रखना, और उसका बारले का केक सा बनाना, और इतना ही खाना तूने दिन में खाना है। और तू अपनी लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर लेटना 390 दिन। भाई और बहनों, 390 दिन तक, एक साल से ज्यादा, लगभग 13 महीने, 13 महीने के करीब एक साइड पे लेटे रहना। सोचते हैं आप कितना इजी काम होगा ये? एब्सोल्युटली डिफिकल्ट। आउटसाइड लेट रहा है खुदा का खादम, और पूरा 13 महीने एक तरफ लेटना, और फिर 40 दिन अर्थात सवा महीना दूसरी तरफ लेटना। सुन रहे हैं आप? लगभग 12.25 महीने प्रभु यहोवा ने कहा ऐसे लेटे रहना, बस कोई नबूवत नहीं करनी, कोई लिखने पढ़ने का काम नहीं करना, तूने लेटना है मेरे हजूर में। और जो रोटी बना के तूने खानी है वो ह्यूमन डंग के ऊपर, इंसान के सूखे टॉयलेट को इकट्ठा करना, उसके ऊपर रोटी बनाना। तो प्रभु का दास प्रभु के आगे रो गया, प्रभु क्षमा करें, ये बहुत डिफिकल्ट है। तो प्रभु ने बोला कि गाय के गोबर के ऊपर बना लेना। ये कीमत देनी पड़ती है सच्चे नबियों को। समझ रहे हैं आप? सच्चे नबी परमेश्वर की प्रजा के लिए विलाप करते हैं, रोते हैं, परमेश्वर की प्रजा के लिए सिंबॉलिकली दुख भोगते हैं। हालेलुया। यूं ही नहीं यहोवा का कलाम उनके ऊपर उतरता है, यूं ही नहीं यहोवा आग, स्वर्गीय आग के अंगारों से उनके होठों को छूता है, यूं ही नहीं यहोवा उन्हें कहता है तेरी मां की कोख से मैंने तुझे अपने लिए अलग किया है। इट इज नॉट दैट ईजी to become a prophet. Nowadays everybody says prophet so and so, prophet so and so. God has not even ever spoken a prophetic word to them, but they assume that they have become a prophet. Prophetic ministry is a very, very daunting task. It is not easy, and it is initiated not by your endeavor, by you putting a title in front of your name, prophet so and so. It is initiated in heaven. And prophets are marked by God even before they are born in the womb of their mother. ये होते हैं नबी जिन्हें स्वर्गीय आग ने मार्क किया होता है और जिन्हें यहोवा ने चुन के अपने लिए अलग किया होता है। तो ये 430 दिन का पाप है। सुन रहे हैं आप मेरी बात? 430 ईयर्स की जजमेंट है, 430 साल का दंड है जो इजराइल के ऊपर आया है, क्योंकि इन्होंने यहोवा की आज्ञाओं को नहीं माना। हालेलुया। और अब देखें आप 430 में से 70 साल माइनस कर दीजिए, क्योंकि ये ऑलरेडी 70 साल बेबीलोन में दुख भोग चुके हैं। अब जो वचन मैं आपको दे रहा हूं जल्दी से पढ़िएगा। हालेलुया। पढ़िएगा दानियल नबी की पुस्तक। हालेलुया। दानियल नबी की पुस्तक, उसका 9 अध्याय। मेरे संग चलें, दानियल नबी की पुस्तक उसका 9 अध्याय। ध्यान से निकालिए दानियल, प्लीज़ इनके नोट्स बनाइए, टाइप कीजिए। ये बहुत कीमती और अद्भुत वचन है जो मैं आपको दे रहा हूँ। पढ़िए दानियल नबी की पुस्तक 9 अध्याय। क्या लिखा है? इन द ईयर ऑफ डेरियस द सन ऑफ अशुरेस, बाय डिसेंट अ मीड, हु वॉज मेड किंग ओवर द रेल्म ऑफ द कैलेडियन, in the first year of his reign, I, Daniel, perceived in the book the number of years according to the word of the Lord to Jeremiah the prophet, must pass before the end of desolation of Jerusalem. अब देखें
कि क्या कहता दानियल? दानियल कह रहा है, दानियल नबी की किताब 9 अध्याय के पहले 2 वचनों में दानियल यिर्मयाह नबी की पुस्तक पढ़ रहा है, स्क्रोल पढ़ रहा है। कहाँ? बेबीलोन में। दानियल ने ये किताब लगभग, भाइयों बहनों, लगभग 70-75 साल पहले लिखी है। अब इसको पढ़ रहा है कौन? दानियल स्क्रोल को पढ़ रहा है। कहाँ पढ़ रहा है? बेबीलोन में। वो गुलामी में चला गया है, उसको 70 साल हो चुके हैं गुलामी में। जब वो पढ़ रहा है तो वो पढ़ रहा है कि यिर्मयाह नबी क्या लिखता है। अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ द लॉर्ड दैट केम टू जेरेमाया द प्रॉफिट मस्ट पास बिफोर द एंड ऑफ डेसोलेशन। यरूशलेम की डेसोलेशन का समय, मैंने आपको बताया यरूशलेम की डेसोलेशन जो है, इट बिगैन एट द सेकेंड सीज। पहले सीज पे 70 वीक्स शुरू हुए और डेसोलेशन से ये समय शुरू हो रहा है जो कि सेकेंड सीज है, नेमली 70 ईयर, 70 साल। 70 साल की कुंजी है ये सजा की। अब सुने आगे। देन आई टर्न माई फेस टू द लॉर्ड गॉड seeking him by prayer and pleas for mercy with fasting and sackcloth and ashes. I prayed to the Lord my God and made confession. ये है प्रार्थनाएं। ये प्रार्थनाएं परमेश्वर के कलाम के आधार पे, परमेश्वर के कलाम की फाउंडेशन पे होती हैं। आप परमेश्वर के नबियों की किताबों को पढ़ते हो। देखिए, डैनियल को जूइश लोग नबी नहीं कहते, जबकि ऑल दैट डैनियल इज डीलिंग विद हिज प्रोफेसी। दानियल एक बहुत बड़ी किंगडम का प्राइम मिनिस्टर है। दानियल के अंदर यहोवा का आत्मा वास करता है। दानियल गहरे से गहरे भेद समझता है। दानियल गहरी से गहरी बातें जानता है। दानियल सपनों के अर्थ समझता है। दानियल राजा का सबसे बड़ा सलाहकार है और सबसे ज़्यादा सम्मान पाया हुआ व्यक्ति है। राजा बहुत सम्मान की दृष्टि से डैनियल की ओर देखता है। डैनियल राजा को मशवरा देता है पॉलिटिक्स के ऊपर, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर। दानियल से मशवरा लेता है राजा, कैसे किंगडम को चलाया जाए, इकॉनमी कैसे चलाई जाए, फाइनेंसेस कैसे चलाए जाएं, कैसे सोशल जस्टिस के मसले हल किए जाएं, कैसे लोगों की वेलफेयर के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया जाए, कैसे अलग अलग नेशंस के संग इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स, इंटरनेशनल रिलेशन कैसे बनाए जाएं, कैसे बिजनेस को, एंटरप्राइजेस को, कैसे अलग अलग कामों को बेबीलोन में आगे बढ़ाया जाए। और डैनियल स्पिरिचुअल गाइड है राजा का। राजा के ख्वाबों की इंटरप्रिटेशन डैनियल देता है। हालांकि जो कलेडियन कसदी लोग हैं ये मूर्तियों की पूजा करते हैं और ये लोग ज़ोडिएक को मानते थे, आकाश के तारे नक्षत्रों की पूजा करते थे। इन लोगों को समयों का, सीजन्स का, ऋतुओं का बहुत गहरा ज्ञान था। ये अकल्ट, डार्क किंगडम, जादूगरी, विचक्राफ्ट, सॉर्सरी, ये सब चीज़ों में बहुत गुणिया लोग थे। तो भी इन सब के ऊपर सरदार कौन था? जिसके अंदर यहोवा का रूह वास करता था, डैनियल। हालेलुया। खुदावंद का अजीम बंदा जिसने अपने आप को, वो दानियल जो है वो बेबीलोन की पॉलिटिक्स के अंदर है, बेबीलोन की एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरोक्रेसी के अंदर है, लेकिन वो व्यक्ति ऐसा है जैसे जल के अंदर, कीचड़ के अंदर कमल शुद्ध होता है। उसको, उसके ऊपर कसदियों की, कैलेडियंस की, बेबीलोनियन की गंदगी के छींटे नहीं पड़े। अगर आप में से कोई, कई लोग हैं पासवान, कई लोग हैं क्रिश्चियन लीडर, पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, तो भाई और बहनों, दानियल जैसा किरदार होना चाहिए आपका। अगर आप भी राजनीति की गंदगी की दलदल में वैसे ही धंसे हुए हो और वैसे ही काम करते हो जो नया, जिन पॉलिटिकल लीडर्स ने नया जन्म नहीं पाया, उनके जैसे काम करते हो, तो आपका क्या फ़ायदा है पॉलिटिक्स में जाने का? तो हालेलुया। तो क्या कहता है? 70 वीक्स आर डिक्रीड। पढ़ें क्या लिखा है यहाँ पे। मैं पढ़ता हूँ आपके लिए डैनियल नबी की किताब में से 3रा वचन पढ़ता हूँ। 70 वीक डेसोलेशन के लिए लिखे हैं। देन आई टर्न माई फेस टू द लॉर्ड गॉड सीकिंग हिम बाय प्रेयर एंड प्लीज
फॉर मर्सी एंड फास्टिंग एंड सैकक्लॉथ एंड एशेस। दानियल दुआ करता है अपनी कौम के लिए, क्योंकि वो नबी यशाया की किताब पढ़ के जान चुका है कि परमेश्वर अब इज़राइल को छुटकारा देगा, क्योंकि 70 साल पूरे हो रहे हैं। तो वो प्रार्थना करता, पहले यहोवा का चेहरा ढूंढता है। कैसे ढूंढता है यहोवा का चेहरा? प्रेयर के द्वारा, प्लीज़ फॉर मर्सी। वो विनतियाँ करता है, जिसे पंजाबी में कहते हैं हाड़े पाता है यहोवा के आगे, कि अपनी कौम को माफ़ कर दे, क्षमा कर दे। वो प्रॉक्सी कन्फेशन करता है, अपने पुरखों के पाप का अंगीकार करता है, यहोवा के आगे रोता है, विलाप करता है। कैसे? विद फास्टिंग एंड सैकक्लॉथ एंड एशेस। उपवास रख के, टाट ओढ़ के और अपने सर में राख डाल के। आई प्रे टू द लॉर्ड माई गॉड एंड मेड कन्फेशन। प्रार्थना करता है, उनके पापों का अंगीकार करता है। हालेलुया। इस्राएली कौम के पापों का अंगीकार करता है यहोवा के आगे। और देखें उसकी अद्भुत प्रार्थना क्या है। ये प्रार्थना है डैनियल नबी की पुस्तक 4 अध्याय से लेके दिस इज द प्रेयर 19 वर्स तक। ऐसी प्रार्थनाएं होनी चाहिए। आप प्रार्थना करना चाहते हो ना, तो बाइबल में केवल प्रार्थनाएं ढूंढें परमेश्वर के संतों की, और उन्हीं प्रार्थनाओं को करें। ये देखिए, ये प्रार्थना कितनी प्योर, कितनी ग्लोरियस प्रेयर है कि यहोवा परमेश्वर के हृदय को टच करती है। तो ये पढ़िएगा आप 20th वचन तक। 20th में क्या लिखा है? वाइल आई वॉज स्पीकिंग एंड प्रेइंग कन्फेसिंग माई सिन। मैं अपने पाप को अंगीकार कर रहा था, एंड द सिन ऑफ माई पीपल Israel, and presenting my plea before the Lord my God for the holy hill of my God। अपने परमेश्वर यहोवा के पवित्र पहाड़ पे दानियल क्या कर रहा है? भाइयों और बहनों, आत्मा में आप पवित्र पहाड़ पे चढ़ सकते हो। There is an ascension that happens through the Spirit. You can ascend on the holy hill. The holy hill of the Lord is where His government sits. The holy hill is where the throne of the Father is. And the entire government happens. God's judiciaries sit on the mountain, on the hill. तो ये हिल पे आत्मा में जा रहा है खुदावंद का बंदा, और क्या कह रहा है? While I was speaking in prayer, a man, Gabriel, whom I had seen in the visions at first, came to me in swift flight at the time of evening sacrifice. दानियल 3 बार दुआ कर रहा है दिन में। आपको मालूम ये प्रार्थना का टाइम क्या होता है? सुबह के 9 बजे, दोपहर के 2 बजे, शाम के 6 बजे। ये 3 प्रार्थनाएं हैं। और यहूदी लोग मानते हैं कि ये वो टाइम है जब परमेश्वर, यहूदी लोग, इस्राएली लोग दुनिया में कहीं भी क्यों ना हो, जब इन समयों पे प्रार्थना करेंगे, यहोवा परमेश्वर कान झुका के उनकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। और देखिए राजा दाऊद इस 3 समयों के अलावा क्या कहता है? कहता है यहोवा बड़ी भोर को उठ के मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। भाई और बहनों, कल मैं आई स्लेप्ट अराउंड 2 o'clock, 2:30। दैट्स व्हाई आई वोक अप लिटिल लेट। तो प्रभु का आत्मा जब आपको खींच के ले जाए, आप बहते रहिए, गो विद द फ्लो ऑफ द होली स्पिरिट। तो भाई और बहनों, राजा दाऊद कहता है एट द ब्रेक ऑफ द डे। दूसरी जगह लिखता है बिफोर द डे डॉन्स आई विल वेक अप। सुबह होने से पहले मैं उठ के तेरा धन्यवाद करूंगा। फिर लिखता है ज़बूरों में थ्रू द वॉचेस ऑफ नाइट आई विल प्रेज दी। फिर लिखता है इन द मिडल ऑफ द नाइट आई विल वेक अप एंड सिंग प्रेजेस अनटू यू। ये है यहोवा के भूखे, प्यासे और तालिब लोग। हालेलुया। जो खुदावंद के भूखे और प्यासे लोग हैं। तो देखिए डैनियल कुंजियां कहां से खोज रहा है। कहां से आपको कुंजियां मिलेंगी? खुदावंद के कलाम में से। हालेलुया। तो इज़िकियल 4 की 1 से 8 बता रही है कि 430 साल की जजमेंट है, 430 ईयर्स की जजमेंट, जो यहोवा कहता है यू लाई डाउन 390 डेज ऑन द लेफ्ट साइड एंड यू लाई डाउन 40 days on the right side. 390 days is the enormous amount of sin of the children of
चिल्ड्रन ऑफ इजराइल विच इज कॉल्ड द नॉर्दर्न किंगडम। उत्तरी राज्य पूरे का पूरा दुष्ट था, वहां के राजा दुष्ट थे, इसलिए 390 साल का पाप है उत्तरी राज्य का और 40 साल का पाप है दक्षिणी राज्य का। मैंने आपको बताया था कल रीजन क्या है, क्योंकि दक्षिण राज्य में यहोवा का टेम्पल था। वो लोग यहोवा के टेम्पल जो कि इसराइलियों की लाइफ लाइन है उसके संग जुड़े रहे। और सदर्न किंगडम में लावी थे, लिवाइट्स, प्रीस्ट, खुदावंद के खादम थे, ज़्यादा नबी भी, हालांकि बहुत शक्तिशाली नबी थे नॉर्दर्न किंगडम में भी, एलिया के जैसे और एलीशा के जैसे। सदर्न किंगडम में बहुत पावरफुल नबी थे जिन्होंने यहोवा के अलहाम को, कलाम को इसराइली कौम के लिए वो लेकर आए। और सदर्न किंगडम ज़्यादा प्रभु से जुड़ा रहा। नॉर्दर्न किंगडम के पाप की सबसे बड़ी वजह थी मनस्से और जरोबोआम राजा। हालांकि सभी राजा दुष्ट थे, जरोबोआम ने बछड़े बनाए सोने के, हालेलुया, और उसने बैतल में और दान में उन बछड़ों को खड़ा किया। और बैतल, आपको मालूम, बैतल एक सिंबल बन गया गुनाह का, पाप का, ए बायवर्ड। It became a slang term for sin, the house of iniquity, the house of perversion. Whereas Bethel was the house of God. Bethel, house of God. Jacob saw the ladder here, the ladder that was touching, one end was touching the heavens, the other end was touching the earth. The ladder that connecting the heaven and the earth. वो इतनी रूहानी आत्मिक जगह पाप का गढ़ बन गई बैतल, क्योंकि वहां पे जरोबोआम ने सोने के बछड़े खड़े किए। और वो नहीं चाहता था उत्तरी इजराइल के 10 गोत्र दक्षिणी इजराइल में जाके यहोवा की आराधना करें। यहोवा ने, भाई और बहनों, पूरे का पूरा रोस्टर दिया है, रोस्टर, पूरे के पूरा शेड्यूल दिया है। सुबह की आराधना कैसे करनी है, शाम की आराधना कैसे करनी है, दोपहर की आराधना कैसे करनी है, कैसे हैकल को सजाना है, कैसे खैमों के अंदर मनोरा में सुबह तेल बदलना है, शाम को तेल बदलना है, कैसे सुबह एक मेमने की कुर्बानी, शाम एक मेमने की कुर्बानी। लावियों के काम क्या हैं, पुरोहितों के काम क्या हैं, याजकों के काम क्या हैं, महायाजक के काम क्या हैं, कैसे अपने आप को शुद्ध करना है, कैसे डेली ब्रेजन ऑल्टर के ऊपर कुर्बानियाँ चढ़ाना है, कैसे परमेश्वर की प्रजा प्रार्थना करे, कौन कौन से समय दिन के मुकर्रर किए गए हैं। फिर यहोवा ने अपना कैलेंडर दिया कि ये मेरा कैलेंडर फॉलो करना है, ये रुत है, सीजन्स हैं, तुमने मेरे सन्मुख आना है, ये पर्वों को मनाना है, ये तुमने फेस्टिवल सेलिब्रेट करने हैं। पूरे का पूरा जीवन का, पूरे का पूरा जीवन कैसे नेविगेट करना है, पूरा मैप दिया था परमेश्वर ने। आप उसी के अनुसार जीना है। फलवंत होंगे आप, बाबरकत होंगे आप, आशीषित होंगे आप, लंबा जीवन जिएंगे आप, आपकी संतान शत्रु के फाटकों के ऊपर गालिब आएगी। यहोवा अपने फाटकों, अपने उत्तम भंडारों को खोलेगा और स्वर्ग के दरीचों से वर्षा करेगा अपनी उत्तम आशीषों की, यहां तक कि आपके घर में रखने की जगह नहीं होगी। आप पृथ्वी की सब कुलों, जाति, राष्ट्र, गोत्र, भाषा बोलने वाले लोगों में से शिरोमणि ठहरोगे, आप पूछ नहीं सिर बनोगे। हालेलुया। यहोवा देखेगा कि आपके घर में बरकत रखने की जगह नहीं है, इस कदर आपको ब्लेस करेगा। आपके दुश्मन आपके विरुद्ध एक मार्ग से आएंगे, यहोवा 7 मार्गों से उन्हें खदेड़ेगा। यहोवा पर्सनल रिवेंज लेगा आपके दुश्मनों से। यहोवा आपको पूछ नहीं सिर बनाएगा। आप पृथ्वी की कौमों को उधार देंगे। इतने धनी होंगे आप, इतने फलवंत होंगे, इतने आशीषित होंगे, इतनी बरकत आपके ऊपर आके ठहरेगी। हालेलुया। चारों ओर से आपका यश, आपका सम्मान, आपकी गरिमा, आपकी कीर्ति फैल जाएगी, क्योंकि यहोवा आपके संग वाचा बांध के रहता है। ये बरकतें हैं भाई और बहनों, जो यहोवा कहता है मैं तुम्हें दूंगा अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, मेरी विधियों को मानोगे, मेरे पीछे चलोगे। लेकिन इजराइल ने ऐसा नहीं किया है। 430 साल की जजमेंट आई, जो परमेश्वर उठाने के लिए कह रहा है इज़िकियल को। इज़िकियल नबी की किताब 4 अध्याय के 1 से 8 वचन में प्रभु कहता है 390 दिन एक साइड पे लेटना, 40 दिन एक साइड पे लेटना, और भोजन बनाना इंसान के टॉयलेट के ऊपर, सूखे टॉयलेट के ऊपर। सुनिए नबियों, जो अपने आप को आप बहुत नबी बोलते हो, ये होते हैं खुदावंद के नबी। तो नबी दुआ करता है तो यहोवा कहता है कि गाय के गोबर पे, उपलों पे बना लेना।
अब सुनिए, आप ध्यान से देखिए, 430 साल की ये जजमेंट है, तो 70 साल ये ऑलरेडी रह चुके हैं। देखिए दानियल जब प्रार्थना कर रहा है यहाँ पे, दानियल को पता है कि 70 साल पूरे हो चुके हैं और वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। अब आप इसके 24 वचन में आए। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो दानियल के ऊपर खोल कौन रहा है? स्वर्गदूत गैब्रियल खोल रहा है। सुनिए 24 वचन में आ जाइए, दानियल 9 का 24। अब ये जिब्राइल फरिश्ता गैब्रियल मैसेज दे रहा है। 70 वीक्स आर डिक्रीड अबाउट योर पीपल एंड योर होली सिटी टू फिनिश द ट्रांसग्रेशन। सुने ध्यान से, 70 वीक मुकर्रर किए गए हैं, 70 हफ्ते अबाउट योर पीपल, तेरे लोगों के लिए, और पवित्र जो नगरी है यहोवा की यरूशलेम, टू फिनिश द ट्रांसग्रेशन, टू पुट एन एंड टू सिन। दो बातें हैं यहाँ पे। फिनिश द ट्रांसग्रेशन, मैंने बोला ट्रांसग्रेशन के लिए वर्ड होता है पिशा। पुट एन एंड टू सिन, खाता, पाप, एंड टू अटोन फॉर इनिक्विटी। देखिए मैंने आपको बताया इनिक्विटी अवोन, अवोन जो वर्ड है अवान, ये बड़ा डीप वर्ड है। अवान, अवून जो वर्ड है पाप के लिए, इट इज अ सिन दैट रन्स डीप ऑन द इनसाइड ऑफ यू। ये पाप की वो डिमेंशन है जो आपके डीएनए में रहती है, आपके आरएनए में रहती है, आपके ब्लड में फ्लो करती है, आपकी सेकंड नेचर है ये। दिस इज योर नेचर एट डिफॉल्ट। मैन ऑपरेट्स इन सिन नेचर बिकॉज द फर्स्ट नेचर दैट गॉड गेव टू एडम इन द गार्डन became corrupt by sin. No longer man is living in that original nature that God gave man in the Garden of Eden. Now man is living his life at default mode, which is iniquity. Iniquity DNA और RNA में चलने वाला पाप है। सुनिएगा ध्यान से। लोगों को परमेश्वर के कलाम की समझ नहीं, इसलिए वो समझ नहीं पाते कि उनके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं और क्यों घटती हैं। आपको मालूम, ये जो इनिक्विटी है, जिसे इनिक्विटी, 3 बातें लिखी यहां पे, ट्रांसग्रेशन विच इज पीशा, सिन, खाता एंड इनिक्विटी, दानियल 9 के 24 में। और ये अद्भुत बातें खुद गैब्रियल बता रहा है। स्वर्ग का एक आर्कएंजल आके एक भेद खोल रहा है दानियल के ऊपर। हालेलुया। इनिक्विटी जो है, प्रभु यहोवा क्या कहता है? कहता है मैं तीसरी और चौथी पीढ़ी तक इसका बदला लेता हूं। सिन का नहीं लेता, पीशा का नहीं लेता, ट्रांसग्रेशन का, पीशा का, खाता का, सिन का नहीं लेता। वो किसका लेता है? इनिक्विटी का। क्योंकि इनिक्विटी डीप परवर्जन है, विकेडनेस है, अनराइचियसनेस है जो इंसान के अंदर है। आप इसे अपनी जनरेशन को पास करते हो। जब एक पति अपनी पत्नी के संग संबंध बनाता है तो उसके पति का जो सीड पत्नी के एग के अंदर जाता है। दोनों के जो सीड हैं, स्त्री का एग के अंदर जेनेटिक कोड है, पुरुष के स्पर्म के अंदर जेनेटिक कोड है, दोनों के अंदर क्रोमोसोम है। उन क्रोमोसोम के अंदर भाई और बहनों इनिक्विटी है, वो आप पास ऑन कर देते हो अगली जनरेशन को। और प्रभु यहोवा तीसरी और चौथी पीढ़ी तक उसका दंड देता है। किसका? इनिक्विटी का, सिन का नहीं, ट्रांसग्रेशन का नहीं। पढ़ लीजिए 24 वचन क्या कहता है प्रभु? 70 वीक्स आर डिक्रीड अबाउट योर पीपल एंड होली सिटी टू फिनिश। फिनिश क्या करना है? 70 सालों में प्रभु क्या फिनिश कर रहा है? 70 साल गुलामी में क्यों ले गया इनको? क्या फिनिश किया जा रहा है 70 साल में? द ट्रांसग्रेशन, अधर्म फिनिश किया जा रहा है। पुट एन एंड टू सिन, पाप को खत्म किया जा रहा है। एंड टू अटोन फॉर इनिक्विटी। अब देखें यहां पे लिखा ट्रांसग्रेशन को और पाप का तो एंड किया जा रहा है, लेकिन इनिक्विटी को अटोन किया जा रहा है। ये 70 साल की सजा अटोनमेंट है, ये भोगनी पड़ेगी, क्योंकि इनिक्विटी जो है उसकी अटोनमेंट की जाती है। इनिक्विटी कभी भी माफ नहीं होती। सुन रहे मेरी बात? इनिक्विटी की अटोनमेंट होती है। इनिक्विटी के लिए उसके इवज में कुछ देना पड़ता है। यीशु मसीह ने इनिक्विटी मिटाने के लिए अपने अंदर का ब्लड दिया है, ऑर्गन का ब्लड। जीसस ब्लड इंटरनली, Jesus bled outside superficially, but Jesus bled internally. There was a flood
of the blood in the inner vital organs that Jesus had, because Jesus wanted to atone. He atoned for my iniquity. He atoned for your iniquity. Iniquity is a very, very serious matter. If iniquity is not dealt in your generation, you are passing it on unto your children, then unto your children, and then unto their children, then unto their children, then unto their children. आपको मालूम लोगों के बिहेवियर पैटर्न कैसे बनते हैं? कुछ लोग बुरा बिहेव करते हैं, लोगों के अंदर सेक्सुअल इमोरालिटी होती है, दे आर परवर्ट, उनके इननेट है सेक्सुअल इमोरालिटी. कुछ लोगों के अंदर होता है, औरतों को सेक्सुअल परवर्जन नज़र से ही देखते हैं वो. कुछ लोगों के अंदर हेट्रेड होती है इनसाइड. कुछ लोगों के अंदर डीप सीटेड एंगर होता है. कुछ लोगों के अंदर इतना जबरदस्त डिप्रेशन होता है कि सब कुछ होने के बाद भी वो डिप्रेस्ड होते हैं. लोग स्ट्रेंजली बिहेव क्यों करते हैं? अजीब अजीब ढंग के बिहेवियर पैटर्न क्यों है लोगों के? आपको मालूम जनरेशनल कर्सेज हैं ये जनरेशनल कर्सेज पैदा होते हैं इनिक्विटी से. जो आपकी लाइन में, मुझे नहीं मालूम मेरी लाइन में मेरे परदादों के परदादों के परदादों के बीच में कितने जादूगरी करते थे, कितने विचेस थी मेरी मदर की लाइन में, मेरे फादर की लाइन में औरतें. किसी ने किसी का मर्डर किया होगा शायद, या किसी ने बहुत डीप लेवल का विचक्राफ्ट किया होगा. कितने कितने सेक्सुअल इमोरालिटी में थे, पोलिगमी में थे. कितने पुरुषों ने ज़्यादा औरतें रखी थी, कितनी औरतों के ज़्यादा पुरुषों के संबंध. वो सब डीएनए में आपके पास आ पहुंचा है. आपके पास तो उनकी जीनियोलॉजी नहीं होगी ना. आप अपने दादाजी के परदादा के परदादा के परदादा को नहीं जानते होंगे. अगर आपके नाम, अगर आप प्रभु में नहीं थे पहले और आप जाके नाम ढूंढ भी लें, क्या कहते हैं जहाँ पे गेंजेस है, भूल रहा हूँ नाम में, उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे पंडितों से नाम पूछ भी लें तो भी आपको उनकी लाइफ हिस्ट्री थोड़ा पता लगेगी. तो ये इनिक्विटी क्या कहता है डैनियल को? डैनियल को कह रहा है 70 साल में प्रभु यहोवा क्या कर रहा है? कहता है 70 ईयर्स, 24 वचन, आर डिक्रीड. ये होती है डिक्री, ये वॉचर की डिक्री है, यहोवा की डिक्री है. बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं ना आई डिक्री आई डिक्री. अरे भैया तेरे पास ऑथोराइजेशन है डिक्री करने के लिए? डिक्री डिवाइन काउंसिल्स के अंदर होती है. बहुत सारे लोग बड़ी फैंसी टर्म्स यूज करते हैं बाइबल की, उनको मालूम ही नहीं है इस वचन का मतलब क्या है. क्या चीजें हैं ये कलाम में लिखी हुई, कभी आपने उनको खोजा है? मैं एक शब्द के ऊपर कई बार 3 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल तक अध्ययन करता हूं. जस्ट टेक वन वर्ड. कई बार मैं कई सेगमेंट सीखने के लिए दुनिया के कई देशों में ट्रैवल करता हूं. ये मेरे लिए जीवन है, ये जिंदा है. ये बाइबल जो मैं पढ़ रहा हूं ये मेरे लिए जिंदा है. मैं इसे देख रहा हूं. इट्स अ एंटिटी, इट्स नॉट अ डेड बुक. दिस बाइबल इज एन एंटिटी. इट इज क्विक एंड लिविंग एंड पावरफुल, शार्पर देन एनी डबल एजेड सोर्ड. क्विक एंड लिविंग. ये जिसको छूता है कलाम उसे जिंदा कर देता है. और ये जीवित है, जीवित है. ये काले अक्षरों से, रेड इंक से लिखे हुए अक्षर नहीं है ये. इट्स अ लिविंग बुक. हालेलुया. तो क्या कहता है कि तेरे लोगों के लिए 70 साल डिक्री इसलिए किए गए हैं, फॉर योर पीपल एंड द होली सिटी. किस लिए? टू फिनिश द ट्रांसग्रेशन. पाप खत्म किया जाए, ट्रांसग्रेशन और पाप अधर्म खत्म किया जाए. एंड टू अटोन फॉर इनिक्विटी. इनिक्विटी की अटोनमेंट जरूरी है. बिना अटोनमेंट के इनिक्विटी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी. इसीलिए ये जनरेशनल कर्स बन के आती है. जनरेशनल कर्सेस. बहुत सारे लोग फॉल्स टीचिंग में, अरे भैया हम प्रभु में आ गए, क्राइस्ट बिकेम अ कर्स फॉर अस ऑन द क्रॉस, वी हैव बीन लिबरेटेड फ्रॉम ऑल द कर्सेस. अरे भैया आपको तो मालूम नहीं है पूरा वचन परमेश्वर का. एक आयत को लेके क्या क्या आप बोलते जा रहे हो? पूरा कलाम सुनो, पूरी होल काउंसिल की स्टडी करो, पूरे कलाम की गहराई में घुसो, तब आपको पता लगेगा सत्य क्या है. ये जो अधूरा ज्ञान और आधा अधूरा प्रचार है, इसने बहुत सारे लोगों का बेड़ा गर्क किया असल में, क्योंकि परमेश्वर की होल काउंसिल नहीं मालूम प्रचारकों को. यीशु मसीह के पास एक आदमी अपने बेटे को लेकर आया और यीशु मसीह से कहता तेरे चेले इसे चंगा नहीं कर सके. आपको मालूम उस समय अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, यीशु मसीह अपने 3 चेलों को लेके, पतरस, याकूब, यूहन्ना को लेके पहाड़ पे चला गया था, जहां पे वो निराला हो गया और मूसा और एलिया उसके लेफ्ट एंड राइट आके बातें कर रहे थे.
स्पिरिट वर्ल्ड खुल गया, स्पिरिट वर्ल्ड, किंगडम ऑफ गॉड केम इन ग्लोरी। यीशु मसीह ने कहा था यहां पे कुछ खड़े हैं उससे पहले 6 दिन पहले, जो मौत का मुंह नहीं देखेंगे जब तक उसके राज्य को ना देख लें। हालेलुया। उसका राज्य क्या है? उसका राज्य है जब यीशु मसीह, जलाली यीशु मसीह, जिसका चेहरे का तेज हजारों सूरजों से भी ज्यादा है, वो तेजस्वी यीशु वहां पे प्रकट हो गया और एलिया और मूसा उसके लेफ्ट राइट आके बातें करने लगे उससे। वो है ग्लोरी, ग्लोरी है किंगडम, उसके जलाल का मैनिफेस्टेशन इज द किंगडम। तो उस समय उसके 9 चेलों के पास एक व्यक्ति अपने बेटे को लेकर आया जिसके अंदर बदरू थी, जो कभी पानी में गिराती थी, कभी आग में गिराती थी, जस्ट लाइक एपिलेप्टिक स्पिरिट। तो चेलों ने जोर लगाया, वो दुष्ट आत्मा नहीं गई, तो वो व्यक्ति अपने बेटे को प्रभु के पास लेकर आया। तो प्रभु ने चेलों को कहा, हे परवर्ट जनरेशन, मैं कब तक तुम्हारे संग रहूंगा? और फिर यीशु मसीह ने झिड़का उस बदरू को, बदरू निकल गई, बच्चा एकदम चंगा हो गया। पिता को पता लग गया मेरा बेटा चंगा हो गया। हालेलुया। जब खुदावंद छूता है तो कोई अद्भुत काम होता है। जब वो रिहाई देगा पता लगेगा। जब खुदावंद रिहाई देता है, गाइए मेरे साथ। जब खुदावंद रिहाई देता है, उसका चेहरा दिखाई देता है, उसका चेहरा दिखाई देता है। जब खुदावंद रिहाई देता है, जब खुदावंद रिहाई देता है। खुदावंद तेरा धन्यवाद। हालेलुया। तो भाइयों और बहनों, गैब्रियल क्या कहता है डैनियल से कि ट्रांसग्रेशन और सिन को एंड किया जाएगा, बट इनिक्विटी विल बी अटोन्ड, टू ब्रिंग इन एवरलास्टिंग राइचियसनेस, टू सील बोथ विजन एंड प्रॉफिट एंड टू अनॉइंट द मोस्ट होली प्लेस। क्या किया जाए? होगा क्या इसका रिजल्ट? ट्रांसग्रेशन और सिन का एंड होगा और इनिक्विटी को टोन किया जाएगा, टू ब्रिंग एन एवरलास्टिंग राइचियसनेस, ताकि राइचियसनेस लौट सके इजराइल में। जब ये राजा लोग राज कर रहे थे, ये दुष्ट थे, भ्रष्ट थे, ये यहोवा की विधियों और हुक्मों पे नहीं चले। इस्राएली प्रजा का आचरण, चरित्र, जीवन यहोवा के वचन के अनुसार नहीं था। तो प्रभु एवरलास्टिंग राइचियसनेस लेकर आएगा, टू सील बोथ विजन एंड द प्रॉफिट। नबियों की बातों को सील करेगा खुदावंद यहोवा। हालेलुया। टू अनॉइंट द मोस्ट होली प्लेस, और उस जगह को फिर से अनॉइंट करेगा जिसके अंदर नबूकदनस्सर की सेनाएं घुस गई, जिसको तहस नहस कर दिया, और उसके पवित्र बर्तन भी वो लूट के ले गए। नो देयरफॉर एंड अंडरस्टैंड दैट फ्रॉम द गोइंग आउट ऑफ द वर्ल्ड टू रिस्टोर एंड बिल्ड जेरूशलम to the coming of an anointed one, prince, there shall be 70 week, for 62 weeks it shall be built again with the squares and the moat, but a troubled time, and after the 62 weeks an anointed one shall be cut off and shall have nothing. अब देखिए, बहुत गहरा ये कलाम है जो मैं धीरे धीरे आपके ऊपर खोलने जा रहा हूं। सुनिए ध्यान से। प्रभु यहोवा ने कहा 70 साल की जजमेंट है, उसमें से 430 साल की जजमेंट है। इज़िकियल नबी की किताब, उसका 4 अध्याय 1 से 8 वचन, और ये पूरा वचन खोल रहा है डैनियल के ऊपर गैब्रियल। अब गैब्रियल दानियल के ऊपर तब प्रकट हुआ है जब 70 साल पूरे हो चुके हैं। दानियल वो पढ़ने लगा, दानियल समझ गया कि अब यहोवा हमें वापस लेके जाएगा, यहोवा की हैकल बनाई जाएगी, यहोवा के लोग वापस यरूशलेम लौटेंगे। तो 70 साल की जजमेंट खत्म हो चुकी है, लेकिन टोटल 430 साल की है। सो 430 माइनस 70 इज इक्वल टू 360। 360 साल की जजमेंट अभी बाकी है। ठीक है, कितनी? 360 साल।
हालेलुया। और प्रभु यहोवा क्या कहता है, सुनिए ध्यान से। अब 360 साल की जजमेंट बाकी है, पर प्रभु यहोवा लेवी व्यवस्था 16 अध्याय, लेवी व्यवस्था 26 अध्याय, लेविटिकस 26, लेवी व्यवस्था के 26 अध्याय में आइए जल्दी से। लेवी व्यवस्था 26 अध्याय, सुनिए ध्यान से, इन वचनों को लिखिए, अध्ययन कीजिए, आपको पूरी बाइबल समझ आने लगेगी, नबियों की किताबें समझ आएंगी, आपको रेवलेशन की बुक समझ आने लगेगी, कलाम आप पे खुलने लगेगा अगर आप परमेश्वर के वचन से प्रीति करेंगे, अध्ययन करेंगे इसका। हालेलुया। लेवी व्यवस्था 26 अध्याय में क्या लिखा है, सुने ध्यान से। लेवी 26 के अंदर क्या कहता प्रभु, इसके 21 वचन से पढ़ें। लेवी व्यवस्था 26 अध्याय के 21 वचन से। देन इफ यू वॉक कॉन्ट्रेरी टू मी, अगर तुम मेरे विरुद्ध में चलोगे, एंड विल नॉट लिसन टू मी, मेरी आवाज नहीं सुनोगे, आई विल कंटिन्यू स्ट्राइकिंग यू 7-fold फॉर योर सिंस, मैं 7 गुना मारूंगा तुम्हें, सजा दूंगा तुम्हारे पापों के लिए। कितना गुना? 7 गुना। फिर आगे पढ़े 22 वचन। And I will let loose the wild beast against you, which shall bereave you of your children, and destroy your livestock, and make you few in number, so that your road shall be deserted. And if by this discipline you are not turned to me, ये डिसिप्लिन है। यहोवा सजा देता है, डिसिप्लिन करता है। वचन में लिखा है इब्रानियों की पत्री में, जो उसका पुत्र है उसे वो सजा देगा, जो इलेजिटिमेट चाइल्ड है उसको वो सजा नहीं देता, अपने पुत्र और पुत्री को वो सजा देगा। अगर इस डिसिप्लिन से तुम मेरी तरफ नहीं मुड़े, बट वॉक कॉन्ट्रेरी टू मी, देन आई विल ऑल्सो वॉक कॉन्ट्रेरी टू यू। अगर तुम मेरे विरुद्ध में चलोगे, मैं तुम्हारे विरुद्ध में चलूंगा। एंड आई माई सेल्फ विल स्ट्राइक यू 7-fold फॉर योर सिन, फिर 7 गुना सजा दूंगा, पहले 7 गुना, फिर 7 गुना। एंड आई विल ब्रिंग अ सोर्ड अपॉन यू, तलवार लाऊंगा। एंड आई शैल एग्जीक्यूट वेंजियंस फॉर द कवनेंट, एंड इफ यू गैदर विद इन योर सिटीज, आई विल सेंड पेस्टिलेंस, सोर्ड भेजूंगा, पेस्टिलेंस भेजूंगा, एंड यू शैल बी डिलीवर्ड इनटू द हैंड्स ऑफ योर एनिमी, मैं तुम्हें तुम्हारे दुश्मनों के हाथ में दूंगा। व्हेन आई ब्रेक योर सप्लाई ऑफ ब्रेड, 10 women shall bake your bread in a single oven, and shall dole out your bread again by weight, and you shall eat and not be satisfied। क्या कहता प्रभु? प्रभु कहता है मैं तलवार भेजूंगा, प्रभु कहता है मैं अकाल भेजूंगा, ये अकाल है, तुम खाओगे पेट नहीं भरेगा। प्रभु कहता है मैं मरी भेजूंगा, प्रभु कहता है मैं बीस्ट भेजूंगा। 27 वचन पढ़ें। बट इफ इन स्पाइट ऑफ दिस यू विल नॉट लिसन टू मी एंड वॉक कॉन्ट्रेरी टू मी, देन आई विल वॉक कॉन्ट्रेरी टू यू, मैं तेरे विरुद्ध में चलूंगा अगर तू मेरे विरुद्ध में चलेगा। इन फ्यूरी एंड आई माई सेल्फ विल डिसिप्लिन यू, मैं खुद अब कह रहा है तुझे दंड दूंगा। पहले गैर कौमें देंगी, अब कहता है मैं खुद तेरा बैंड बजाऊंगा। 7-fold फॉर योर सिंस, फिर 7 गुना, फिर 7 गुना सजा दूंगा। और पढ़िए 30 वचन। आई विल डिस्ट्रॉय योर हाई प्लेसेस एंड कट डाउन योर इंसेंस ऑल्टर्स, कास्ट योर डेड बॉडीज upon the dead bodies of your idols, and my soul will adore you. I will lay your city waste and will make your sanctuary desolate. I will not smell your pleasing aromas. I myself will devastate the land, so that your enemies settle in it shall be appalled at it. I will scatter you among the nations. I will unsheath the sword after you. मैं तलवार निकाल के तेरे पीछे भागूंगा। And your land shall be a desolation, and your city shall be waste. देख रहे हैं प्रभु क्या कहता है? 4 बार प्रभु कहता है मैं दूंगा 7 टाइम्स। इज़राइल के संग ये हुआ 7 टाइम्स जजमेंट। लेवी व्यवस्था 26 अध्याय 18, 21, 24 और 28 वचन में 7-fold जजमेंट के विषय में लिखा है। 7 गुना सजा। अब उनके 360 साल बाकी रह गए थे सजा के। 360 को यहोवा ने 7 से मल्टीप्लाई किया, इट बिकम्स 2520 ईयर्स। यहां से जो दर्शन दे रहा है दानियल को, कौन? गैब्रियल। यहां से अब 2520 साल की सजा शुरू होती है, टिल द डायस्पोरा। डायस्पोरा का मतलब समझते हैं? प्रभु यहां कह रहा है मैं तुम्हें तितर बितर कर दूंगा जमीन की कौमों में। 28 अध्याय व्यवस्था विवरण आपने पढ़ना है। मैं बहुत सारे लोगों को बोलता हूं 28 अध्याय व्यवस्था विवरण को मेमोराइज करें। प्रभु उसमें कहता है मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा, तुम्हारे पाँव के तलवों को आराम नहीं दूंगा,
तो मैं ज़मीन की कौमों में तितर बितर कर दूंगा। इज़राइल एक ऐसा कौम है भाई और बहनों, जो पूरी दुनिया में तितर बितर हुआ है। पूरे का पूरा यूरोप इज़राइलियों का बीज है। इज़राइलियों का बीज है मिडल ईस्ट के अंदर, अरबी लोगों के अंदर। इज़राइलियों का बीज है चाइनीज़ लोगों के अंदर। इज़राइलियों का बीज था हमारे देश में। आपको मालूम, मनस्से के गोत्र के लोग नागालैंड में पाए गए। 12,000 से ज़्यादा लोग चले गए आलिया करके इज़राइल में। आपका डीएनए टेस्ट किया जाता है कि जूइश लोगों से मैच करता है। ये लोग रशिया में थे, यूक्रेन में थे, ये लोग पूरे के पूरे यूरोप में थे, ये लोग ब्राज़ील में, ग्वाटेमाला में, पेरू में, ये लोग हेटी में, ये लोग लैटिन अमेरिका के सारे कंट्रीज़ में, कैरेबियन आइलैंड में, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ये लोग थे। सब दुनिया में फैल गए क्योंकि प्रभु का दंड आया इनके ऊपर। प्रभु ने इन्हें तितर बितर किया। तो डायस्पोरा का मतलब जो तितर बितर किए गए यहूदी लोग हैं। 360 दिन का कैलेंडर है यहोवा का, लूनर कैलेंडर। जो दुनिया का कैलेंडर है वो 365 दिन का है, 365 पॉइंट समथिंग। तो अगर हम देखेंगे भाई और बहनों, 22,520 साल जो हैं, इसको हम कन्वर्ट करेंगे। हालेलुया। ये जो कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन ली गई है सोलर कैलेंडर के ऊपर। अगर यहोवा के कैलेंडर में इनको हम लेकर आएंगे, इसको जो सोलर से हमें इसे यहोवा के कैलेंडर में लाएंगे, तो ये बनेगा 2483 ईयर्स प्लस 9 मंथ प्लस 21 डेज। इसकी जो पूरी कैलकुलेशन है, मैं आपको, अगर आप अपनी ईमेल मुझे दें, मैं आपको ये सारी डिटेल ईमेल कर सकता हूँ। हालेलुया। तो देखें, जो जूलियन कैलेंडर है उसके लिहाज से 11 मंथ 10.46 डेज इज ग्रेटर देन सोलर ईयर ग्रेगोरियन रिफॉर्म्ड कैलेंडर विच इज 11 डेज, उसमें से 11 दिन निकाल दिए गए हैं। एंड पुट लीप ईयर जो होता है वो चौथा साल लीप ईयर होता है। नाउ लीप ईयर को अगर बीच में ऐड करेंगे तो ये बनता है 2483 बाय 4 इज इक्वल टू 621। तो 3 एक्सेसेस इन 4 सेंचुरीज, 4 सेंचुरी में 3 एक्सेसेस हुई, तो इज इक्वल टू 18 एक्सेसेस। तो 261 माइनस 18 माइनस 11 इज इक्वल टू 614 डेज। 614 दिन निकले ये। ठीक है भाई और बहनों। और अब जो 2483 हैं, जो मैंने आपको बताया 2483 दिन, उनको 365 से मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो ये बन जाएगा 9,05,295 दिन। उसके अंदर 9 महीने और ऐड करो, 270 दिन। उसके अंदर 21 दिन और ऐड करो जो एक्सेस के हैं, लीप ईयर के, तो ये बन जाएंगे 614 ईयर्स, 614 साल बनेंगे। 614 जो कि आपके बन जाएंगे 9,07,200 इन 360 डेज। ये टोटल बनते हैं 9,07,200 दिन, 9,07,200 दिन। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, चलिए मेरे संग। ये लोग, मैंने आपको बताया 3 सीज हुई यरूशलेम की, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, हर साल में होती रही। और उसके बीच में डेसोलेशन ऑफ यरूशलेम है जो सेकंड सीज के दौरान हुई, डेसोलेशन ऑफ यरूशलेम। तो पहली सीज जो है, पढ़ें, मैं आपको वचन देना चाहता हूँ, पढ़िएगा, अब इनको लिखिएगा भी इन वचनों को। यरूशलेम की पहली सीज, पहला घेराबंदी यरूशलेम की। दूसरा राजा, सेकंड किंग्स में आइए और उसका 24 वचन पढ़िए। दूसरा राजा 24 और उसके 2 वचन को आपको देता हूँ। दूसरा राजा 24 का 2। एंड द लॉर्ड सेंट अगेंस्ट हिम बैंड्स ऑफ कलेडियंस, बैंड्स ऑफ सीरियन, bands of the Moabite and the bands of the Ammonite, and sent them against Judah to destroy it, according to the word of the Lord that he spoke by his servants the prophets. दूसरी बार आ रही, ये फर्स्ट सीज है, दूसरा राजा 24 के 2 में। सेकंड सीज कहाँ है? दूसरा राजा 24 का 11 पढ़े।
And Nebuchadnezzar, king of Babylon, came to the city while his servants were besieging it. And Jehoiachin, the king of Judah, gave himself up to the king of Babylon, himself and his mother and his servants and his officials in his palace officials. अब राजा अपने आप को सरेंडर कर देता है। पहले झूठे नबियों की सुनता था, प्रभु यहोवा बचाएगा, हमारी लड़ाई लड़ेगा, फॉल्स प्रॉफिट प्रोफेसी कर रहे थे। सेकंड सीज है ये। अब थर्ड सीज देखें, दूसरा राजा उसका 25 अध्याय और उसका 2 वचन। दूसरा राजा 25 अध्याय पहले वचन से पढ़ता हूँ। एंड इन द 9th year of his reign, in the 10th month, on the 10th day of the month, Nebuchadnezzar, king of Babylon, came with all his army against Jerusalem and laid siege against it. And they built siege work all around it, so that the city was besieged till the 11th year of King Zedekiah. अब ये ज़ेदेकिया है, आपको मालूम, जेहोयाकीम पहले राजा था, उसको हटा के जेहोयाचिन को बिठाया गया, उसके बेटे को। जेहोयाचिन को गुलामी में ले गए, उसकी जगह ज़ेदेकिया जो उसका चाचा था उसको बिठाया गया राज्य में। ये थर्ड सीज है, तीसरी सीज। सुन रहे हैं आप? फर्स्ट सीज, सेकंड सीज एंड द थर्ड सीज। इसके अंदर ये भेद है सारे। ये तीनों जो सीज हैं, इट इज कॉल्ड द सर्विट्यूड ऑफ नेशंस। इज़राइल जमीन की कौमों की गुलामी करेगा, ये है सजा। सुन लीजिए, प्रभु यहोवा ने अपनी चुनी कौम को, मैंने आपको बताया इज़राइल यहोवा की मिरास थी। बाबुल का बुर्ज बनाते समय 11 अध्याय में 70 जमीन की कौमों को उसने वॉचर के हवाले कर दिया। लेकिन मैंने आपको बताया डिट्रोनमी चैप्टर 4 वर्स 19 में, व्यवस्था विवरण 4 के 19 में लिखा है, उसने इज़राइल को अपने लिए चुन लिया। इज़राइल मेरा है। उसने इज़राइल से कहा, इज़राइल मेरा पहलौठा बेटा है, मैंने अपने पहलौठे बेटे को मिस्र से बुलाया है। इज़राइल से उसने शादी की, इज़राइल यहोवा की दुल्हन है। या इज़राइल से यहोवा कहता, तू मेरी है, तू मेरी पत्नी है, मैंने तुझसे प्रगाढ़ प्रेम किया है, अथाह प्रेम किया, तुम मेरे हो, तुम मेरा निज भाग हो। प्रभु यहोवा कहता, तुम मेरा क्राउन हो, तुम मेरी अपनी प्रजा हो, मैं तुमसे प्रीति करता हूं, मैंने तुम्हें जमीन की सब कौमों से अपने लिए अलग किया। देखिए उस कौम ने क्या काम किया भाई और बहनों। उस कौम ने उसकी वाचा को पांव के नीचे रौंदा। एक बार नहीं, हजारों बार उस कौम के राजाओं ने दुष्ट काम किए, उस कौम के हाकिमों ने दुष्ट काम किए, उस कौम के ऊपर जो जजेस थे उन्होंने दुष्ट काम किए, उस कौम के रहनुमाओं ने बदकारी की, हरामकारी की, गंदे काम किए। उस कौम के राजाओं ने, उस कौम के नबियों ने झूठी नबूवतें की, उस कौम के लावियों ने गंदे काम किए, उस कौम के स्पिरिचुअल लीडर ने इस्राएली कौम को गंदे कामों में धकेला, जबकि यहोवा ने उनके संग ऐसी अनूठी वाचा बांधी जो पृथ्वी की किसी कौमों के साथ नहीं थी। तो प्रभु ने कहा, दंड दूंगा फिर मैं। 4 बार वो कहता है, 7 times more, 7 times more, 7 times more, मैं तुम्हें कौमों के हवाले करूंगा। ये है सर्विट्यूड। बहुत सारे मसीहों का ये हाल है, वो उनका जीवन लताड़ा जा रहा है, तलवार है उनके विरुद्ध में, उनके विरुद्ध में मरी खड़ी है, उनके विरुद्ध में अकाल खड़ा है, उनके विरुद्ध में बीस्ट खड़ा है जो गुलाम बना के ले जाता है। लेकिन उन्हें मालूम नहीं है, उनको झूठे नबी ठग रहे हैं, झूठा कलाम दे रहे हैं, झूठे कैलेंडरों के ऊपर आयतें लिखी हुई हैं, वो कॉन्टेक्स्ट से बाहर निकाल के उनको दे रहे हैं। कल मैं आपको बता रहा था ना कि आपको पढ़िए यिर्मयाह 29 का 10, वहां पे क्या लिखा है, फिर पढ़िए 29 का 11, जो आयत कैलेंडरों पे दीनाकरण जी सारे डाल के देते हैं, बढ़िया बढ़िया मीठी मीठी बातें। God is going to bless you, God is going to do, I see the hand of, अरे भैया कलाम दो लोगों को सच्चा, ताकि लोगों का जीवन बच जाए। सैकड़ों साल गुजर गए आपको सेवा करते, आत्मिक बेदारी नहीं आई, क्योंकि लोग पाप में डूबे हैं। लोगों ने यहोवा परमेश्वर का अपमान किया है, उसकी विधियों हुक्मों को पांव के नीचे रौंदा है। सोड खिलाफ है परमेश्वर के लोगों के, पेस्टिलेंस चल रही है, अकाल है और बीस्ट खड़ा है। सच्चा कलाम दीजिए लोगों को। प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम को देख के आपको मालूम क्यों रोते हैं? क्योंकि यीशु मसीह सबसे बड़ा नबी है, यीशु मसीह से बड़ा कोई प्रॉफिट नहीं है। उन्होंने सबसे बड़े नबी को रद्द कर दिया है। वो यरूशलेम को देख के रोता और कहता है, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, मैंने तो ऐसे चाहा कि जैसे मुर्गी अपने चूजों को पंखों के नीचे करती है। आपको मालूम मुर्गी कब करती है पंखों के नीचे? जब सांप आता है, जब कोई पंछी आता है अटैक करने के लिए, मुर्गी अपने पंखों के नीचे करके डरा देती है। हालेलुया। यीशु मसीह मुर्गी की तरह हमें पंख के नीचे लेता है। हालेलुया। वो हमारी लड़ाई खुद लड़ना चाहता है, हमारे दुश्मनों से सामना खुद करना चाहता है, लेकिन लोग चाहते नहीं है।
यीशु मसीह ने कहा यरूशलेम को देख के, यरूशलेम पांव के नीचे, अन्य जाति के पांव के नीचे रौंदा जाएगा जब तक गैर कौमों के समय पूरे ना हो। प्रभु ने गैर कौमों को टाइम दे रखा है यरूशलेम इज़राइल को रौंदने का। यीशु मसीह कह के गया ये बात, कब कही उसने कही ऑलमोस्ट 30 AD में, आज से लगभग 1970 साल पहले कही। यरूशलेम पांव के नीचे तब तक रौंदा जाएगा जब तक गैर कौमों का समय पूरा ना हो। तो आज मैं बताने जा रहा हूं आपको गैर कौमों का समय कब पूरा हुआ। यह है सर्विट्यूड ऑफ नेशन, इज़राइल कौमों की गुलामी करेगा, यह दंड आया है। हालेलुया। तो सुने अब ध्यान से। अब क्या होता है, साइरस नाम का राजा है, जब दानियल ये दुआ कर रहा है, दानियल नबी की किताब 9 अध्याय में, साइरस राजा को यहोवा ने पकड़ा है। मैं उसके ऊपर आज आपको फिर कलाम दूंगा, मे बी 11 o'clock, साइरस के ऊपर, केवल साइरस के ऊपर हम अध्ययन करेंगे। साइरस को पकड़ा। आपको मालूम, साइरस के पैदा होने से पहले, मान लो आज 2020 में मैं खुदा का एक नबी हूं और मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं कि 2270 में एक बंदा पैदा होगा, उसका नाम होगा मान लो अनुग्रह सिंह, और वो कलीसिया के लिए इतने बड़े बड़े काम करेगा, और ये भविष्यवाणी मेरी लिख के रख दी जाए, और मैं मान लो 100 साल बाद प्रभु के पास चला जाऊं, और मान लो कि 270 साल के बाद आज से वही भविष्यवाणी पूरी हो। परमेश्वर की कौम वो जो भविष्यवाणी में लिख के छोड़ गया उसे पढ़े और उसी के अनुसार एक व्यक्ति पैदा हो जिसके द्वारा प्रभु बहुत बड़े बड़े काम करे। ये होती है प्रोफेसी। आपको मालूम, साइरस के विषय में यशाया नबी ने भविष्यवाणी की जब उसका दादा पैदा हुआ था, अभी उसका बाप भी पैदा नहीं हुआ था। उस समय यशाया ने भविष्यवाणी की कि साइरस नाम का एक बंदा पैदा होगा, और वो भी कहाँ, वो पैदा होगा मीड्स एंड पर्शियंस में। अभी मीड्स लोगों की किंगडम ही नहीं उठी है इतने जोर से। मादी लोग जो हैं एक छोटी सी पावर है, लेकिन खुदावंद का खादिम जब वो राष्ट्र भी नहीं बने हैं, अभी पर्शियंस का रूल है। पर्शियंस के बाद मीड्स आते हैं। मीड्स एंड पर्शियंस काइंड ऑफ एसोसी, वो हैं एक एलाई हैं। ये होती है नबूवत। उसके बाप के पैदा होने से पहले उसकी भविष्यवाणी की और उसका नाम बता दिया, और उसके माँ बाप ने उसका वही नाम रखा। ये मैं आपको मे बी 10-11 o'clock इसके ऊपर हम मनन करेंगे आज। तो साइरस की डिक्री से अगर आप काउंट करेंगे, ये जो है पहला फैली सीज, सेकेंड सीज, थर्ड सीज मैंने आपको बताई, जिसे हम कहते हैं सर्विट्यूड ऑफ नेशन। ये 70 साल का था। 70 साल पूरे हुए, उसके बाद आगे साइरस की डिक्री आ गई। साइरस की डिक्री के बाद फिर 70 ईयर्स हैं, जिसे हम डेसोलेशन ऑफ जेरूशलम बोलते हैं। 70, ठीक है। और इसके बाद अर्टाजेरेक्सस राजा डिक्री देता है। साइरस के बाद जो आता है 3 डिक्रियां। डिक्री का मतलब शाही फरमान। शाही फरमान, राजा की मोहर लगे हुए फरमान मिलते हैं कि यहूदी लोग अपने देश को वापस लौट सकते हैं। अर्टाजेरेक्सस देता है। इससे क्या होता है, इससे ट्रिगर होता है डैनियल का 70 वीक। इसको समझना थोड़ा डिफिकल्ट इसलिए है। तो ये जो 70 साल पहले, फिर 70 साल चले गए, वहां से आगे 2520 साल, 2520 साल जो है वो आपको मालूम कहां पूरे होते हैं जाके? 2520 साल 7 जून 1967 को। हालेलुया। सेकेंड डिक्री, जो उसकी थर्ड डिक्री है अर्टाजेरेक्सस की, 2520 साल का समय 7 जून 1967 को पूरा होता है। जून 7, 1967। आपको मालूम क्या होता है यहाँ पे इज़राइल कब्जा करता है। किस पे? यरूशलेम पे। लेकिन अगर आप साइरस की डिक्री जो है, 2 डिक्रियां हैं, एक अर्टाजेरेक्सस की, एक साइरस की है। साइरस की जो डिक्री है वो 70 साल के बाद आ गई है। एजरा, नहेमिया, जरूब्बाबेल लोगों को लेके पहुंच गए यरूशलेम। वो 70 साल वहां पे बना रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं। जब आप 70 साल पीछे चले जाएंगे, 2520 साल वहां पे काउंट करेंगे। 70 साल पीछे जाके जो साइरस की डिक्री है, 3 डिक्रियां हैं, सुन लीजिए ध्यान से। साइरस के आदेश से जब आप काउंट करेंगे 2520 साल,
तो भाई और बहनों एग्जैक्ट डे आते हैं 14 मई 1948। क्या हुआ 14 मई 1948 को? इजराइल एक देश बन गया। प्रभु यहोवा ने कहा, क्या एक राष्ट्र एक दिन में पैदा हो सकता है? यशाया नबी की किताब में गॉड सेज, कैन अ नेशन बी बॉर्न इन अ सिंगल डे? Oh, absolutely not. Even a child is not born in a single day. You cannot build a family in a single day. It takes years to build a family. एक परिवार को बनाने में कई साल लगते हैं, एक देश को बनाने में सेंचुरीज लगती हैं। यहोवा ने एक दिन के अंदर इजराइल को पैदा किया। हालेलुया। अमेरिका का प्रेसिडेंट मिस्टर ट्रूमन और इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल। ट्रूमन बाइबल पढ़ता था, खुदा का खादिम था। वो प्रचारकों को प्रचार करते सुनता था कि इजराइल देश बनेगा, परमेश्वर की सामर्थ आएगी, यहूदा के खंडरों को बनाया जाएगा, इजराइल की डेसोलेशन को यहोवा रिमूव करेगा, हैकल बनाई जाएगी, यहोवा के छुड़ाए वापस लौटेंगे। जय जयकार करते हुए उनके सर पे हर्ष का तेल होगा, उसकी टोलियां आएंगी, वो यहोवा की शहरपनाह को बनाएंगी। भविष्यवाणियां थी। एजरा, नहेमिया, जरूबाबेल पहुंच गए थे 70 साल पहले, जब डिक्री साइरस ने दी। 70 साल वो बना रहे थे। वहां से अगर 2520 साल काउंट करें तो भाई और बहनों 14 मई 1948 का दिन आता है एग्जैक्टली। ना एक दिन आगे ना एक दिन पीछे, जिस दिन इजराइल राष्ट्र बना। विंस्टन चर्चिल और प्रेसिडेंट ट्रूमन, इन दोनों ने इनिशिएटिव लिया। इन्होंने दुनिया के राष्ट्रपतियों को, प्राइम मिनिस्टरों को फ़ोन किया, वोट्स लिए। आपको मालूम सच्चाई क्या है? हमारा देश आज़ाद था, 1947 में आज़ाद हुआ। 1 साल हो चुका था। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू से ट्रूमन, प्रेसिडेंट ट्रूमन ने बात की और कहा कि आप इजराइल के लिए सपोर्ट करें ताकि इजराइल स्टेट बन जाए। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जी ने मना कर दिया। इंडियन नेशनल कांग्रेस हमेशा इजराइल के विरोध में खड़ी रही। आपको मालूम क्यों? क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस ये मानती रही कि इजराइल फिलिस्तीनियों का देश है, जबकि भाई और बहनों इजराइल यहूदियों का देश है। यहोवा ने वाचा बांध के, सौगंध खा के, शपथ खा के ये धरती इजरायलियों को दी है, ये उनकी है। अभी तक उनको पूरी धरती मिली नहीं है, यीशु मसीह के राज्य में मिलेगी। उनकी धरती भाई और बहनों ईरान तक टच करती है, उनकी धरती नॉर्दर्न मिस्र तक टच करती है, जो उनकी लैंड है, जो उन्हें नहीं दी गई है। आपको मालूम प्रभु ने क्या कहा? जो इजराइल को शीश देगा उन्हें मैं शीश दूंगा, जो इजराइल को श्राप देगा उन्हें मैं श्राप दूंगा। तो देख लीजिए अब आप पंडित जवाहरलाल नेहरू की डायनेस्टी देखें, घर में कितनी दुर्घटनाएं हुई। इंदिरा जी कैसे मारी गई, राजीव जी कैसे मारे गए, उनका दूसरा भाई कैसे मारा गया। देखिए जरा, जो तुझे आशीष देंगे, यहोवा परमेश्वर कहता है इजराइल को, उन्हें मैं आशीष दूंगा, जो तुम्हें श्राप देंगे उन्हें मैं श्राप दूंगा। एक दिन में, इंडिया यस बोले या ना बोले, एक दिन में इजराइल देश बना दिया यहोवा ने। मैं इजराइल के ऊपर आपको सीरीज शुरू करके कम से कम 1 महीने की शिक्षा दूंगा। हालेलुया। इतना डीप रेवलेशंस अपॉन रेवलेशंस खुदावंद ने मेरे दिल में डाले हैं। हालेलुया। तो भाई और बहनों, एग्जैक्ट उसी दिन, उसी डेट को अगर आप 70 साल पीछे जाके साइरस की डिक्री के 70 साल बाद अर्टाजेरेक्सस ने डिक्री दी है। साइरस की डिक्री से 2520 साल काउंट करेंगे, 14 मई 1948। इसमें 70 साल ऐड कर दें तो आ जाता है 1967, 7 जून 1967। मैंने एक एक दिन काउंट करके बताया आपको। 9,07,200 दिन हैं ये। दिनों की कैलकुलेशन नहीं बताई मुझे। एक्चुअली मॉनिटर और वाइट बोर्ड चाहिए ताकि मैं सब टीचिंग दे सकूं उसके ऊपर। हालेलुया। 7 जून 1967 ये वो दिन है जब बिब्लिकल शहर, जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था कि बाइबल में 2 शहरों की गाथा है। एक है यरूशलेम, जिसको बनाने वाला यहोवा है, और दूसरा शहर है बेबीलोन, जिसको बनाने वाला शैतान है। 2 शहरों की दास्तान है। यहोवा शहर को रिस्टोर करता है। हालेलुया। 7 जून 1967 को। अब मैं 70 ईयर्स की और टीचिंग भी आपको दूंगा
लेकिन मैं अभी ब्रेक लूँगा और हम लोग ये अध्ययन करेंगे मे बी 11-12 o'clock. 11-12 o'clock we will come back again and we'll continue studying 70 weeks of Daniel. We'll talk about Cyrus की भविष्यवाणियाँ यशाया की पुस्तक में से, और मिस्ट्री बेबीलोन शैल कंटिन्यू. ये बहुत डीप सब्जेक्ट है. हालेलुया. और मैं आशा रखता हूँ कि आप नोट्स बना रहे हैं ताकि जब कभी मैं रेफ़र करूँ आप नोट्स देख सके. मैं चाहता हूँ आप लोग शिक्षित हों परमेश्वर के कलाम में, शिक्षित हों, आप जानें परमेश्वर के कलाम में क्या है. आप सीजन्स को जानें जिसमें हम जी रहे हैं, टाइम्स को अंडरस्टैंड करें, और आप यीशु मसीह को पेश कर सकें इस दुनिया के आगे एक बड़े इफेक्टिव ढंग में. हालेलुया. खुदावंद आप सबको बरकत दे. तो प्लीज़ वो याद रखिएगा, मैंने आपको एक रिक्वेस्ट दी है कि एक पास्टर जी हैं, बहुत अजीज़ हैं मेरे लिए वो, और वो हिल्स के अंदर खुदावंद की सेवा करते हैं. बहुत दुख भोगा उन्होंने, उनको पुलिस ने हरास किया, लोकल कम्युनिटी ने हरास किया है. तो अभी उनके संग बहुत ट्रेजेडी हुई है. उन्होंने अपनी बेटी के लिए मुझे बोल रहे 3 लाख के करीब, 2 लाख जोड़ा था, 3 लाख बन गया था, बट वो कोई फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट हो गई है. तो वो मेरे पास आए थे, मैंने उनकी कुछ सहायता की है. हमें और उनकी कुछ खास सहायता करनी है, एक गुड सीड उनको देना है. उनकी बेटी की शादी दिसंबर के फर्स्ट वीक में है. मैं तो उस समय दिल्ली हूँगा, लेकिन हम उनकी सहायता करेंगे. तो आप ज़रूर प्रार्थना कीजिएगा और खुदावंद आपके दिल में ज़रूर डालेगा. तो प्लीज़ मुझे मैसेज भी कर दीजिएगा, तो हम वीक के अंदर अंदर उनको हेल्प दे देंगे. हालेलुया. खुदावंद आप सबको बरकत दे. मैं 11 या 12 o'clock फिर आपसे मुलाकात करता हूँ. ये सब्जेक्ट कंटिन्यू करेंगे. सबको जय मसीह की.